Okay, the topic is magnetic field due to a current in a solenoid. Magnetic field due to a current in a solenoid. So here it is said, if we pass current through solenoid, solenoid is insulated copper wire in the form of a spring. Insulated copper wire, if it is in the form of a spring, and if you pass current, it will behave like a magnet. And this is said to be what? Solenoid. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Solenoid. So if I ask you, what is a solenoid? Now, what is a solenoid? A solenoid is a coil of many turns of insulated copper wire closely wound in the shape of a tight spring. ये स्प्रिंग का जो सर्कल्स होगा वो इतना गैप नहीं होगा, इनमें गैप कम होगा. इट विल बी अ टाइट स्प्रिंग. एंड इफ यू पास करंट, it behaves like a magnet. If you pass current through it, it behaves like a bar magnet. ये exactly bar magnet जैसा ही behave करेगा. Outside the bar magnet, जैसे magnetic field lines north to south होगा, in solenoid also magnetic field lines are directed from north to south. Okay, and inside magnetic field lines are directed from south to north. अब इंसुलेटेड वर्ड का मतलब, इंसुलेटेड, ये कॉपर का वायर है. इसके ऊपर अगर बाहर, इसके ऊपर अगर प्लास्टिक का एक कोटिंग, क्लोथ कवरिंग या पेंट किया हुआ रहेगा, जैसे घर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो किया हुआ देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर अलग अलग कवर का प्लास्टिक कोटिंग होता है कलर का. वो होता है फॉर इंसुलेशन. मतलब करंट वहां से लीक नहीं होना चाहिए जहां कोटिंग रहेगा. सो अगर हम कोटिंग यूज नहीं करेगा और टाइट स्प्रिंग बना देगा, टाइट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का सभी सर्कल ज्वाइन हो जाएगा. देन ज्वाइन होने के बाद इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल वायर. ये यहां से यहां तक एक वायर जैसे बिहेव करेगा. तो इसीलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करने का पर्पस क्या है? हम लोग को स्प्रिंग बनाना है. क्या बनाने का कोशिश करना है यहाँ पे? स्प्रिंग. So when an electric current flows through a solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid, which is similar to the magnetic field of a bar magnet. One end of the solenoid acts as south pole and the other end acts as north pole. एक साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा और दूसरा नॉर्थ पोल. If the current flows in clockwise direction when the coil is seen end on, अगर आप कॉइल को किसी एक एंड से देखते हो और उस साइड से देखने से अगर करंट का डायरेक्शन, जैसे लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था, अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो पर्टिकुलर साइड साउथ पोल होगा. On the other hand, if current flows in anti-clockwise direction when the coil is seen end on, then that end of the solenoid acts as north pole. Okay, that end of the solenoid will act as north pole. So, solenoid क्या है? Solenoid एक insulated copper wire का spring shaped structure है. If you pass current through it, it behaves like a magnet. It behaves like a bar magnet. It behaves like a bar magnet. तो अगर आपको पूछा जाए insulated copper wire, और यहाँ पे एक साहिल पूछ रहा है कि my Zoom is not working, unable to hear you. तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. क्लास आज रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में मैं देखूंगा अगर लिंक भेजना पॉसिबल होगा तो. So what is a solenoid? A solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire closely wound in the shape of a tight spring. In the shape of a tight spring. Okay.
So are you getting my voice clearly, all of you? Are you getting my voice clearly? Okay, most of you are getting my voice clearly, and some are facing some kind of problem. Some are facing some kind of problem. So देखते हैं थोड़ा देर में अपने आप ठीक होता है क्या. Screen is not visible to someone. So we were discussing about solenoid, और यहाँ मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे पता लगाया जाता है कि solenoid का कौन सा एंड नॉर्थ होगा और कौन सा एंड साउथ होगा. And we already know one thing. अगर if current flows clockwise, the side from which we are watching will be south pole. If current flows anti-clockwise, the side from we are watching will be the north pole. तो ये पर्टिकुलर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है सोलोनॉइड का, उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ. रेड में मैं ड्रॉ कर देता हूं. इसमें करंट का डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं, जस्ट लुक एट दैट. ऐसे करंट फ्रंट से, इस साइड से, साउथ वाला साइड से बैक जा रहे हैं. तो बाकी सब रिंग में भी ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग. ऊपर जाके करंट बैकवर्ड जा रहे हैं एंड देन कमिंग डाउन. इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड, अगर आप ये साइड से देखोगे तो आपको करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा? आपको करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा? देखो, जो इमेजिन आपको करना होगा, करंट का डायरेक्शन अगर इस साइड से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब ये वाला साइड नॉर्थ पोल, और उसका मार्किंग नॉर्थ पोल किया हुआ है ऑलरेडी. और अगर इस साइड से आप देखोगे तो करंट का डायरेक्शन आपको दिखेगा क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज दिखने का मतलब साउथ. सो इस तरीका से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं दैट विच साइड विल बी द नॉर्थ एंड विच साइड विल बी द साउथ. A solenoid behaves like a bar magnet. A solenoid behaves like a bar magnet. लेकिन सोलोनॉइड टेम्पोररी मैग्नेट होता है और एक बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है. ओके, ये प्रैक्टिकल करते वक्त सोलोनॉइड कैसा दिखेगा आप ऐसा बना के भी प्रैक्टिकल कर सकते हो. ये जो वायर है आपको उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, और दिस इज इंसुलेटेड वायर. ओके, जरूरी नहीं कि वायर एवरी टाइम वायर जो है पेंटेड ही होगा. उसमें प्लास्टिक कोटिंग भी होता है, क्लोथ कवरिंग भी होता है टू मेक इट इंसुलेटेड. नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू सोलोनॉइड. सोलोनॉइड से रिलेटेड पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग. तो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड लाइन स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. आउटसाइड द सोलोनॉइड नॉर्थ टू साउथ ऐसा अगर कर्व बनता है, लेकिन अंदर स्ट्रेट लाइन रहेगी. सो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, uniform magnetic field and it is strong magnetic field. Strong क्यों? क्योंकि lines are very close to each other. This magnetic field is represented by straight magnetic field lines parallel and very close to each other. Parallel and very close to each other. Number 2, magnetic field inside a long solenoid decreases as we move towards the ends. तो आप अंदर में जब देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ने लग जाएगा.
और गैप बढ़ने का मतलब, मैं अगर आपको पूछूं, इफ आई आस्क यू कि पॉइंट 1 अंदर यहां पे और पॉइंट 2 कहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इफ आई आस्क यू पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगा? पॉइंट 1, क्योंकि पॉइंट 2 तक आते आते क्या हो रहा है, गैप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। देन यहां पे सेकंड पॉइंट को वापस रीड कर देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, magnetic field inside a long solenoid decreases as we move towards the ends of the solenoid because the magnetic field lines near the ends of the solenoid start spreading out. Third point, magnetic field outside the solenoid is non-uniform and weak. अगर अंदर और बाहर का कंपैरिजन करेगा तो अंदर स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होता है और बाहर वीक भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. Magnetic field lines inside the solenoid are from south pole to the north pole, and outside the solenoid the lines are from north pole to the south pole. Magnetic field of solenoid resembles the magnetic field of a bar magnet, जो मैंने पहले बता दिया. It behaves like a bar magnet. Magnetic field उसके जैसा ही होगा. The strong magnetic field produced inside solenoid is used to magnetize the rods of magnetic material. अब अगर आप solenoid के अंदर अगर स्टील का रॉड डाल देते हो और आप स्ट्रॉन्ग करंट पास करते हो, इसके अंदर स्टील का एक रॉड है एंड यू आर पासिंग स्ट्रॉन्ग करंट, तो ये स्टील का रॉड धीरे धीरे मैग्नेट बन जाएगा. ओके लेकिन अगर आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर डालोगे, सॉफ्ट आयरन, so soft iron is having a special property. It gets magnetized when current is passed and it gets demagnetized when current is switched off. तो आप टेम्पोररी मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट. So the strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize the rods of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. So these are certain characteristics of solenoid. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करना है आपको? सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करना है सोलेनॉइड के अंदर. सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल, करंट पास करने से तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और स्विच ऑफ करने से इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड. तो आपको मैं अगर कंपैरिजन करने बोलूं, कंपेयर बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये बार मैग्नेट है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ इसका कंपैरिजन करने से, बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पोररी मैग्नेट. इसमें अगर आप करंट स्विच ऑफ करोगे देन इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड. जिन्हें पूछ रही है कि सर स्टील रॉड विल आल्सो गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन स्विच्ड ऑफ. नो, स्टील का एक प्रॉपर्टी है कि इफ इट गेट्स मैग्नेटाइज तो करंट ऑफ करने से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा. लेकिन सॉफ्ट आयरन एक स्पेशल मटेरियल है व्हिच कैन डीमैग्नेटाइज इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो करंट. तो अगर आप स्टील यूज करोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, स्विच ऑफ करने के बाद भी मैग्नेट रहेगा. सो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंसेस में, वन इज बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पोररी मैग्नेट. अनदर डिफरेंस, बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज आप नहीं कर सकते. बट इलेक्ट्रोमैग्नेट, you can increase the strength of solenoid or electromagnet by increasing the number of turns. इतना जगह में अगर आपको कितना टर्न दिखाई दे रहा है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्न, इतना ही जगह में अगर आप 14 टर्न्स करोगे तो मैग्नेटिज्म डबल हो जाएगा. By increasing the number of turns, by increasing the amount of current, आप टर्न भी ज्यादा कर सकते हो, आप करंट भी ज्यादा कर सकते हो, and you can use soft iron core. So what are the three ways by which you can increase the strength of solenoid? By passing more current, by increasing the number of turn, or by using soft iron as core material. लेकिन बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म it is constant. Okay, बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म is constant. So
what are the three ways by which we can change the strength of solenoid, strength of electromagnet? By passing more current, by using more number of turns per unit length, okay, by using more number of turns per unit length, by using more current, or by using soft iron core. I hope you have understood. अच्छा, एक और चीज किया जा सकता है कि आपका बार मैग्नेट में पोलैरिटी फिक्स्ड होता है। जो साइड नॉर्थ है नॉर्थ ही रहेगा, जो साइड साउथ है साउथ ही रहेगा। लेकिन आप यहां पे चेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट यू कैन चेंज। आपको क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करना है। जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने से जो पहले नॉर्थ पोल था वो साउथ हो जाएगा, और जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा। जिधर एंटी क्लॉक था उधर क्लॉक हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर से मैग्नेटिज्म कैसे चेंज होगा? सॉफ्ट आयरन कोर से मैग्नेटिज्म, सॉफ्ट आयरन खुद भी मैग्नेट बन जाएगा। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है, व्हेन यू पास करंट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, तो खुद भी मैग्नेट बन जाएगा। तो पहले से मैग्नेट, वो भी मैग्नेट, मैग्नेटिज्म विल इंक्रीज, magnetism will increase. Okay, so just look at the three differences. Just look at the three differences between electromagnet and bar magnet. I am giving you 2-3 minutes time, self reading karo. यहाँ क्वेश्चन है अमन पारिक, व्हेन विल यू स्टार्ट द रिड्यूस कोर्स ऑफ 2020-2021 अगेन? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले एक बार कोर्स तो कंप्लीट होना पड़ेगा, एंड देन आई विल स्टार्ट। और हमारा गारंटी है कि आप लोगों को पूरा कोर्स एक बार और कंप्लीट करना पॉसिबल है। अभी एक बार आपको एक्सप्लेनेशन होने के बाद फुल कोर्स का रिवीजन, एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। ओके, सुजाता अपने आप करेक्ट कर लेना, वो बड़ा इश्यू नहीं है, होता है ऐसा बहुत, लेकिन बताने के लिए थैंक यू। सॉफ्ट आयरन का केमिकल नेम फेरस ऑक्साइड है क्या? नहीं, सॉफ्ट आयरन इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, दिव्या बोथरा। सॉफ्ट आयरन इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, सो आयरन ही है वो। So I hope you've understood the three differences between electromagnet and permanent magnet, or we can say bar magnet. Electromagnet ये है temporary magnet, bar magnet is permanent magnet, cannot be demagnetized easily.
इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। बट परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट ही होता है और वो वीक भी होता है। पोलैरिटी मतलब हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो पोजीशन है दैट कैन बी चेंज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट परमानेंट मैग्नेट में इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। राघव पूछ रहा व्हाट विल हैपन इफ वी पास करंट थ्रू अ मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट से करंट पास करोगे आप, कुछ होने वाला है नहीं, ओके। हो सकता है उसका मैग्नेटिज्म खत्म भी हो जाए, कम हो जाए, दैट मे हैपन, बट उसका मैग्नेटिक इफेक्ट और बढ़ेगा नहीं। सो सोलोनॉइड के और बार मैग्नेट का कंपैरिजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। Electromagnets are used in factories and cranes to lift heavy iron objects, okay, and steel scrap from one place to another. हॉस्पिटल में भी यूज होता है, अगर आपका स्किन में, आईज में कोई आयरन का ऑब्जेक्ट घुस गया तो उसको निकालने के लिए भी मैग्नेट का हेल्प लिया जाता है। फिर इलेक्ट्रिक बेल में, टॉयज में, स्विचेस में इट कैन बी यूज्ड, ओके। सो दीज आर यूज्ड इन वेरियस अदर डिवाइसेस। आपने देखा होगा टॉय कार में मैग्नेट्स का या टॉयज में मैग्नेट का यूज बहुत होता है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऐसा होता है, एक बड़ा क्रेन जो स्टील का स्क्रैप को एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज्ड to move the iron scrap from one place to another. ओके, यहाँ पूछ रहा रितेश, आयरन स्प्लिंटर, आयरन का छोटा छोटा पीसेस, दे आर द आयरन स्प्लिंटर्स। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग्स आयरन का पाउडरी पीसेस होता है, पाउडर जैसा हो जाएगा एकदम, light powder. So iron filings are the small pieces of iron that look like light powder and they are often used in science demonstration experiment के लिए चाहिए, आपको पता ही है। We have discussed many such experiments to show the direction of the magnetic field, okay, or direction of magnetic field lines more properly. Okay. वॉइस किसी किसी को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा बीच में, तो ये प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत रहेगा। नाउ आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहुंच गए हम लोग, और वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट पास करोगे एक कंडक्टर से एंड यू प्लेस दैट कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, the conductor will experience force, कुछ ऐसा एक्टिविटी। इफ यू लुक एट दिस एक्टिविटी, और इसको अगर आप आज समझ पाए तो आपका आज का क्लास सक्सेसफुल है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, देयर इज नीड ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट फॉर दिस एक्टिविटी। उसका ये जो डायग्राम गिवन है उसमें अपर साइड है साउथ, लोअर वन नॉर्थ। और आप स्क्रीन में मुझे देखो और उस एक्टिविटी को थोड़ा समझने का कोशिश करना। ये है वो यू शेप्ड मैग्नेट और उसका अपर पार्ट इज साउथ, लोअर पार्ट इज नॉर्थ। तो आपको मैं अगर पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेरे लिए अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अपवर्ड। क्यों? किसी ने डाउनवर्ड भी बोला है। अपवर्ड होगा क्योंकि ये जो नीचे वाला साइड है वो नॉर्थ गिवन है, ऊपर वाला साइड साउथ गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड, ठीक है। और इसका नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, इसका नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, ठीक है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में
एक हम लोगों ने प्लेस किया है कंडक्टर, और इस कंडक्टर को स्विंग जैसा बना देंगे, मतलब झूला जैसा, ये अंदर और बाहर जा सकेगा, ठीक है, इसको झूला जैसे बना देंगे। अब डायग्राम को देखो एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो करना क्या आप लोगों को, यू शेप मैग्नेट एंड दिस इज अ कंडक्टर, और ये कंडक्टर को प्लेस किया हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ ऐसे। तो अगर मैं आपको पूछूं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वर्टिकल था और कंडक्टर होराइजन, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। निखिल ने 60 डिग्री बोला है, एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली अप और वायर इन होराइजन, वायर ऐसे होराइजन like this, so the angle between these two will be 90 degree. A current carrying conductor placed in a magnetic field, a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences force. क्या रीजन है फोर्स एक्सपीरियंस करने का? क्योंकि a charged particle moving in a magnetic field experiences force. एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव करने से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा? इंटरैक्शन होगा, देयर विल बी फोर्स। सो एक कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड, और कंडक्टर का मैग्नेटिज्म और मैग्नेट का मैग्नेटिज्म के बीच में इंटरैक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी फोर्स, because of that there will be force. Debanjan is not getting my voice properly, there may be network issue, okay, from your side it may be network issue हो सकता है। okay, so मैं जो समझा रहा था, दिमाग लगाना, आई एम टेकिंग टाइम, बट द रीजन इज दैट हम चाहते हैं कि ये एक एक्टिविटी आपको समझने से आपका आगे का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, सो मैं बोल रहा हूं देयर इज अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होगा सपोज फ्रॉम बी टू ए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में क्या एंगल होगा? करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन में क्या एंगल होगा? करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन में भी 90 डिग्री होगा एंगल, क्योंकि रॉड में ही तो करंट फ्लो होगा। रॉड में अगर करंट फ्लो होगा तो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना है, बिकॉज रॉड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 90 डिग्री था, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी 90 डिग्री, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी क्या होगा? 90 डिग्री। Okay, so some voice related issue I think. शिवम पूछा does dropping a magnet from a height reduces its magnetic force? हाँ, मैग्नेट बार बार गिरने से भी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होता है। So what we are discussing अभी का एक्टिविटी में, we are discussing if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, this current carrying conductor experiences force. The reason is that a moving charge particle in a magnetic field experiences force. कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा, चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड देयरबाय द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो अब तक का डिस्कशन से आपको दो चीज माइंड में सेट करना है। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब वो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा या तो चार्ज पार्टिकल या कंडक्टर, उस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
we will use our what Fleming's left hand rule. ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब आपको स्क्रीन में मुझे देखना है और मैं जैसे हैंड में फिंगर का अरेंजमेंट कर रहा हूं, यू हैव टू अरेंज लाइक दैट, यू विल हैव टू अरेंज लाइक दैट। ओके, सो कोई भी स्टूडेंट जो मेरे साथ एक्टिविटी को करना चाहे वो वीडियो ऑन करके कर सकता है। सो निखिल सिंह, ठीक है, लेकिन अपना बैकग्राउंड थोड़ा वो कर दो ताकि तुम्हारा हैंड ठीक से दिखे। इफ यू कैन एडजस्ट दैट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming's left hand rule, ठीक है, अभी ठीक है, कुछ पूछना हो तो इन बिटवीन पूछ लेना। तो according to Fleming's left hand rule, we have to arrange these three fingers mutually perpendicular to each other। कौन सा थ्री फिंगर? फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। जैसे आप यहाँ देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरा के, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, सबके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दिस थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। और अगर आप ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है। आपके सामने आपका स्क्रीन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, देखो आपका टीचर, उसको उड़ाना है, बस ऐसा फीलिंग लाओ अंदर से कि उसको उड़ाना है, तो क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। ये है गन का बैरल, वो कर दो टीचर की तरफ पॉइंट, निखिल कर दो, डरो मत, हमको ही उड़ाना है समझो। और ये है ट्रिगर और ये थंब है एम लेने के लिए। दिस थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबका अरेंजमेंट हो गया? Have you done that? Okay. यशपाल सिंह बोल रहे हैं इट रियली वर्क्स, क्योंकि अंदर से फीलिंग आएगा ना तो ये वर्क करेगा, हमको पता है। जब टीचर को उड़ाने का बात आएगा तो अंदर से अलग से जोश आ जाएगा, पबजी वाला जोश आ जाएगा, तो सेटिंग अच्छा से होगा। सो दिस थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रूल मैं बता रहा हूँ, ये रूल जिस जिसको समझ में आया है उसी को इस चैप्टर में मजा आएगा, अदरवाइज खेल खत्म है, ठीक है। What we are discussing, a current carrying conductor in a magnetic field experiences force, and the direction of force experience can be known by application of Fleming's left hand rule। तो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ देख के बताना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इट इज अपवर्ड, सबको मिला ये अपवर्ड। अब मैं आपको पूछूं, करंट का डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उसमें B2A है। B2A का मतलब टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। क्या लगता है, ये थ्री डायमेंशनल में इमेजिन करके आपको बताना है, करंट B से A की तरफ आ रहा तो आपके तरफ आ रहा है या अवे फ्रॉम यू, टुवर्ड्स और अवे, करंट टुवर्ड्स और अवे। ओके, सबको समझ में आ गया, करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी हैव टू स्ट्रेच दिस थ्री फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझाता है, तो फोर फिंगर को ऊपर करना होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अभी भी समझाया हम, करंट किधर, टुवर्ड्स यू, तो मिडिल फिंगर को अपना तरफ कर लो, अपना आंख में घुसाना, जैसे फीलिंग नहीं आएगा लेकिन ऐसे इमेजिन कर लो। तो आपका थंब किधर चला गया, आपका राइट हैंड वाला साइड में या लेफ्ट हैंड वाला साइड में? थंब किधर दिखाई दे रहा है आपका, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? थंब लेफ्ट में आ गया। और ये जो एरो दिया हुआ वो फोर्स का डायरेक्शन से मैच कर रहा है, देखो तो ये ब्लू एरो जो गिवन है यहाँ पे, दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपका मैच हो गया क्या, देखो
force, thumb indicates the force. Okay, so according to what is Fleming's left hand rule, अब relax हो जाओ, relax, muscles में थोड़ा pain हो सकता है. According to Fleming's left hand rule, we have to stretch these three fingers mutually perpendicular to each other, forefinger, middle finger and thumb. If forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the direction of the force experienced by the current carrying conductor. Have you understood? हिंदी में समझा देता है. तीनों फिंगर को 90 डिग्री में रखना है. You have to adjust like this. Forefinger अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन समझाता है, मिडिल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन को समझाएगा, then thumb will indicate the direction of the force experienced by the current carrying conductor. Okay, अब पिक्चर शुरू हुआ है. अब हम लोग इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे. अब मैं जो बोलूंगा ठीक से सुनना आप लोग. सपोज ये पोल को हम साउथ कर दिया मैग्नेट को घुमा के, और ये पोल को नॉर्थ कर दिया. ठीक है, और अब आपको मैं पूछता हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा. अब मैं आपको पूछता हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा. ठीक है, तो वापस क्या करना, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल, और एक बार वापस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम लोग. ओके, यूज कर लेते हैं. थोड़ा पेशेंस रखो, फिर आंसर बताना. According to Fleming's left hand rule, we have to stretch these three fingers mutually perpendicular to each other, और सबका डायरेक्शन हम लोग को पता है. तो इस डायग्राम में अब थोड़ा चेंजेस कर दिया मैंने. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है. तो अब हमारा फोर फिंगर जो होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड. फोर फिंगर अपवर्ड या डाउनवर्ड. इस पर डाउनवर्ड हो जाएगा. फोर फिंगर डाउनवर्ड हो जाएगा. ओके, और मिडिल फिंगर, करंट का डायरेक्शन तो मैंने चेंज नहीं किया, करंट का डायरेक्शन खुद के तरफ ही रहेगा. आंख फोड़ो वाला प्रोग्राम. सो मिडिल फिंगर किधर, तुम्हारे साइड. थंब किधर हो गया, तुम्हारा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड. थंब किधर हो गया, तुम्हारा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. सो एक सेंटेंस में बोलता हूं, आपको समझ में आता है क्या. रिलैक्स, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं. If we reverse the direction of the magnetic field lines, direction of force will also be reversed. Have you understood? If we reverse the direction of the magnetic field lines, direction of force will also be reversed. ठीक है, direction of force will also be reversed. तो मैं जो सेंटेंस टॉपिक स्टार्ट किया था आज, वो टॉपिक था a current carrying conductor in a magnetic field experiences force, and the direction of force experience can be known by application of Fleming's left hand rule. The direction of force experience can be known by application of Fleming's left hand rule. अब एक और सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे. Another situation. Look at another situation. क्या कर रहा हूं मैं, पोलैरिटी चेंज नहीं किया, पहले के जैसे कर दिए, और मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा. आई विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. थोड़ा टाइम लग सकता है, इन एरो को हटाना है हमको. सो करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर देते हैं. बस आप समझ जाना, ज्यादा डिफेक्ट खोजने का कोशिश मत करना. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इतना साल में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है. प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम जानता है कि हमारे जितना मेहनत और कोई नहीं कर रहा है. दैट आई नो. सो टेंशन हमको कम है थोड़ा. सो डायरेक्शन ऑफ करंट हम रिवर्स करने वाला है. डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करने वाला मतलब पहले जो एरो था इधर B to A दिखा रहा था, अब हम उसको चेंज करके A to B कर रहे हैं. करंट का डायरेक्शन हम इधर से इधर कर दिए. आई हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, बैटरी के बारे में आप खुद ही समझ जाओ, रिवर्स कर दिया है. इतना टाइम और नहीं है डायग्राम को मॉडिफाई करने के लिए.
जो मेन पॉइंट है, आई हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ आई विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थोड़ा देर पहले मैंने क्या प्रूफ करके दिखाया आपको कि इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड. और अब हम ट्राई करेगा ये समझाने का, इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आल्सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड. तो हम करंट का डायरेक्शन चेंज किया है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है अभी वाला सिचुएशन में? अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपवर्ड. फोर फिंगर अप, फोर फिंगर अप. करंट का डायरेक्शन क्या करोगे इस बार? करंट टुवर्ड्स और अवे? करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे? अवे. ओके, थंब किधर आ गया? थंब आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट. ओके, राइट मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? जो डायग्राम है उसमें तो फोर्स दिखा रहा था लेफ्ट में, अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया टुवर्ड्स राइट. सो व्हाट इज अंडरस्टूड हियर? इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, if we reverse the direction of current, direction of force will also be reversed. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं जो क्लास 10 में यूज नहीं होता, डायरेक्टली हाई क्लास में. ये जो फोर्स अप्लाइड है, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा. BIL साइन थीटा. B मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I का करंट, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट. जो एंगल तो हम लोग 90 डिग्री रख रहे हैं, और 90 डिग्री में ये फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या है, कोई बता दो? साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0. तो साइन का वैल्यू अगर, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री कर देगा तो फोर्स 0 हो जाएगा. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट दोनों पैरेलल होने से एंगल थीटा होता है 0 डिग्री, तो फोर्स होगा 0. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट दोनों अगर 90 डिग्री एंगल में होगा, दोनों अगर 90 डिग्री एंगल में होगा, द फोर्स होगा मैक्सिमम. फोर्स होगा मैक्सिमम. ओके, फोर्स विल बी मैक्सिमम. एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. L is the length of the conductor and theta is the angle between B and I. B और I के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल थीटा. सो अगर मैं आपको पूछूं कौन सा एंगल के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा? 90 डिग्री के लिए. कौन सा एंगल के लिए फोर्स मिनिमम होगा? 0 डिग्री के लिए. ओके, सो what are the three factors on which the force experienced by the current carrying conductor depends? The तीन main factor है, strength of the magnetic field, amount of current flowing, and the length of the conductor. If I use powerful magnet, magnitude of force will be increased or decreased. अगर हम पावरफुल मैग्नेट यूज करेगा तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा कंडक्टर में वो ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा. ठीक है, वो फोर्स ज्यादा होगा. अच्छा, आप लोग एक कन्वेंशन जानते ही हो, मैं आपको एक स्टार्टिंग में बात बोला था, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, और साथ में बोला था मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स. तो जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा, और मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज दे विल एक्सपीरियंस फोर्स एक्सेप्ट फॉर वन कंडीशन, और वो कंडीशन है ये जो एंगल थीटा, मतलब चार्ज का मोशन का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो फोर्स वहां भी 0 होगा. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. आपको ये पता चल जाता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या है. दो पर्पस है. एक है आप करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स का डायरेक्शन जान सकते हो, और सेकेंड है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल में भी अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन जानना है, यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेकिन जब आप चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई करोगे तो एक चीज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करता है बाय कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन हम लोग वही लेता है.
और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करेगा बाय कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन ऑलवेज उसका उल्टा लेता है हम लोग। ये तो रूल है, बाय कन्वेंशन चलते आ रहा है। किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन अगर आपको बोलूं तो किधर से किधर लेते, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो आपको ये चीज ध्यान रखना है। सो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उनको ठीक से सुनना अभी। A moving charge particle in a magnetic field experiences force, moving बोल रहा हूं, moving, रेस्ट में होने से नहीं होगा। A moving charge particle in a magnetic field experiences force and the direction of force can be known by application of Fleming's left-hand rule. फिर second point है, a current carrying conductor in a magnetic field experiences force and the direction of force can be known by application of Fleming's left-hand rule. And the magnitude of the force experienced depends on various factors: strength of the magnetic field, amount of current, length of the conductor, angle between the magnetic field and the current. If the angle is 90 degree, force is maximum. If the angle is 0 degree, force is minimum. So I think you've understood this part. सबको समझ में आ गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट भी याद करना होगा, और हम अभी स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। Just look at the statement. This is Fleming's left hand rule. ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। Okay, Fleming's left hand rule. So if you look at the statement, जितना बात point number 21, 22 में है मैंने सब आपको समझा दिया है। Point number 21 एक बार देख लो। Which rule is employed to find the direction of the force on a current carrying conductor when kept in a magnetic field? State the rule and explain it by diagram. Rule है Fleming's left hand rule. According to this rule, we have to stretch the thumb, forefinger and the middle finger of our left hand such a way that they are mutually perpendicular. If forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force of the conductor in the magnetic field. फिर point number 22 देखना। Fleming's left hand rule can also be used to know the direction of force experienced by charged particle moving perpendicular to the direction of the magnetic field. चार्ज पार्टिकल के लिए भी हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर्ड सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. On the other hand, direction of electric current is considered opposite to the direction of the motion of negatively charged particle, that is electrons. अगर मैं आपको बोलूं किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है तो आप करंट का डायरेक्शन क्या लोगे? करंट का डायरेक्शन क्या लोगे? अपवर्ड. देवांजन, आज का क्लास रिकॉर्ड